Hello students, welcome to our physics lecture for 10 plus 1 medical and non-medical stream. Today we are going to start unit 3 and chapter 5, that is laws of motion. First of all, force. Force is a push or pull which tend to change or actually change the state of rest or of uniform motion. यानी कि एक push और pull जिसके साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकते हैं. अगर वो रेस्ट में है उसको मोशन में कर सकते हैं, अगर वो मोशन में है तो उसे रेस्ट में लेके आ सकते हैं. दिस इज नोन एज द फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियस एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन. एसआई मीन्स टू से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट. And force is always equals to mass into acceleration. So the dimension formula of force becomes mlt minus 2 because mass का आ जाएगा m, acceleration का आ जाएगा lt minus 2. Next is momentum. It is the quantity of motion possessed by a moving body and it is measured by the product of mass and velocity. That means किसी भी moving body में कितना motion possess कर रही है, वो कितना quantity of motion उसमें पोजेस किया हुआ है, दिस इज नोन एज अ मोमेंटम. दैट मीन्स मास कितना है उसका और उसकी वेलोसिटी कितनी है, इन दोनों का प्रोडक्ट इज दैट इज नोन एज द मोमेंटम, वेयर m is a mass, v is a velocity of the body and p be the momentum. And it is also a vector quantity because v is a vector quantity, so p is also a vector quantity. And when the body is at rest, for example, momentum of a table. Okay, suppose momentum of a static table. I have to calculate. So this is equals to 0 because velocity of that table be 0. That means momentum is also 0. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 और उसका मोमेंटम भी क्या होगा 0, चाहे उसका मास कितना भी ज्यादा क्यों ना हो. Next is momentum of body is 0 when the body is at rest. So in this way इसके SI सिस्टम के जो यूनिट्स हैं ये हो जाएंगे kg मीटर पर सेकेंड बिकॉज मास का आ जाएगा बेटा मास इंटू वेलोसिटी है ना प्रोडक्ट. सो मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. दिस इज अ वेरी बेसिक क्वांटिटीज यू हैव ऑलरेडी रेड इन standard 9th in chapter motion and force and laws of motion. Next dimension formula is a mass into velocity का product है. So mass का m आ जाएगा बेटा, velocity का होता है lt minus 1 because velocity is equal to distance divided by time ना, so lt minus 1. So the dimension formula क्या हो जाएंगे इसकी mlt minus 1. Next is inertia. Inertia, it is a property of a body by which it can't change itself, its state of rest or of uniform motion in a straight line is called as inertia. जैसे कि फैन को आपने स्विच ऑफ किया वो एकदम से नहीं रुकता है ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन. सो हियर आर थ्री इनर्शिया की there are of three, it is of three types mainly, that is inertia of rest, inertia of motion, and third one is inertia of direction. So firstly is inertia of motion. When body is at rest and it tends to remain at rest. For example, when we hit the carpet, जैसे कि सर्दियाँ चली जाती हैं तो हम अपने कारपेट्स या रजाइयाँ वगैरह जो भी है हमारे ब्लैंकेट्स उनको एक बार ड्राई क्लीन करवा के या फिर धूप में बिछा के उसको वो क्या करते हैं लाठी से मारते हैं तो वो डस्ट काफी सा निकलता है उसमें. बिकॉज when we hit the carpet with a stick, the carpet comes in motion but the dust particle tend to remain at rest, due to which they are removed from the carpet and the carpet gonna clean up. So this is the first example of the inertia of rest. Next is inertia of motion. Body is in motion tends to remain in motion. For example, when a running horse suddenly stops, man sitting on the horse fall forward because the lower part of the body comes to rest along with the horse, but the upper part of body tends to move due to the inertia of motion. That is के inertia of motion के क्या मतलब है कि कोई पर्सन है, हॉर्स राइडर है, वो हॉर्स पे बैठा हुआ है आराम से अपनी राइड को, अब वो मजे कर रहा है. अचानक से उसको क्या हुआ कि उसने सडनली उसका हॉर्स जो है वो स्टॉप हो गया, रुक गया. तो क्या हुआ उसे एक जर्क फील हुआ इन द फ्रंट साइड बिकॉज उसका जो लोअर पार्ट है वैन सिटिंग ऑन द हॉर्स फॉल्स फॉरवर्ड, उसे आगे की टुवर्ड्स जर्क फील हुआ क्योंकि जो उसका लोअर पार्ट है बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी कम्स टू रेस्ट बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉर्स बॉडी. ओके, बट द अपर पार्ट इज नॉट इन द कॉन्टैक्ट विद द हॉर्स बॉडी, दैट इज वाई इट कम्स इन टू motion due to the inertia of motion. That is why he is feeling a jerk
also when we are moving, when we are traveling in a bus and suddenly on a road there comes a animal, suppose the driver have to stop the car or bus suddenly, and you're also feel in this way the फॉरवर्ड जर्क ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि एकदम से आप रेस्ट में बैठे थे, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और आप आगे की तरफ गए ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि आपका जो लोअर पार्ट है वो सीट के साथ कांटेक्ट में है और वो रेस्ट में रहेगा, बट जो अपर पार्ट है इट इज नॉट like be in the contact of the seat. That is why we are feeling a forward jerk. So this is the examples of the inertia of motion. Next is inertia of direction. A body tends to maintain its direction. For example, a stone is tied to a string and is rotated in a circle, and the string breaks suddenly, and at a point the stone flies off the tangent due to inertia of direction. Suppose एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, उसके जो उसके हाथ में जैसे स्ट्रिंग है, देखिए इसके पास एक स्ट्रिंग है, उसमें स्टोन जो है वो टाई किया हुआ है और वो उसको यूनिफॉर्म मोशन में इस तरह से रोटेट कर रहा है। सडनली उसकी जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो गई, तो वो इस पॉइंट पे ब्रेक हुई सपोज, तो वो एक तरह से इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में उसका क्या है, टेंजेंट। जैसे कि हर कर्व के साथ आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसका टेंजेंट इस टुवर्ड्स हो जाएगा, इसका टेंजेंट इस टुवर्ड्स हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना नहीं चाहता। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस केस में आप सर्कुलर एग्जांपल्स लें, देन इट विल बी बेटर टू एक्सप्लेन द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन. Next is basic, it's very basic, Newton's first law of motion, that every object or every body in this universe continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change its state. हर एक ऑब्जेक्ट और हर एक बॉडी अब यूनिवर्स में अपनी पहले वाली स्टेट में ही रहना पसंद करती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करती है, यूनिफॉर्म में है तो वो यूनिफॉर्म में ही रहना पसंद करेगी, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी ताकि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो सके। सो दिस इज नथिंग बट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum is directly proportional to the external force applied and take place in the direction of force applied. That means basic क्या है इसका कि जो rate of change of momentum है that is directly proportional to the force applied. अब rate of change of momentum that is d by dt of p. d by dt को हम बोलते हैं rate of change of. ठीक है, एक्चुअली जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट की बात करते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स सिंपली वी हैव टू डिवाइड इट विद द टाइम, बट यहाँ पे चेंज है दैट इज बाय डी बाय डी टी. ओके, दिस रिप्रेजेंट्स टू स्मॉल चेंज, so that is d by dt of p, which is nothing, it is a momentum that is directly proportional to f. Now see, डी बाई डी टी मोमेंटम की जगह पे क्या आ जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी. अब मास कांस्टेंट है बेटा, डेरिवेटिव में जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट हम बाहर आ जाती है, मास बाहर आ गया, सो यहाँ पे क्या बच जाएगा, डी वी बाई डी टी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एस रिलेशन ए. सो यहाँ से f किसके बराबर आ जाएगा, ma. तो आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन दैट यू हैव टू ड्राइव f इज इक्वल्स टू ma बाय यूजिंग द न्यूटन सेकेंड लॉ. बेसिकली f इज इक्वल्स टू ma भी एक फॉर्म है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की. ओके, next is Newton third law of motion. Newton third law of motion say that to every action there is equal and opposite reaction. That means अगर एक body A है उस पे F1 force हो exert कर रहा है वो B body पे, एंड मेक श्योर कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली एप्लीकेबल तभी होता है जब हम दो बॉडीज की बात करें. अगर सेम ही बॉडी की बात करो तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते कि अप्लीकेबल होगा या नहीं. अगर हम दो फोर्सेस की, दो बॉडीज की बात कर रहे हैं कि ए ने बी के ऊपर F1 एक्सर्ट किया तो बी भी ए के ऊपर F2 एक्सर्ट करेगी, विच आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. मैंने क्या बोला, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दैट
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल का मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट यहाँ पे मतलब है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ओके, सो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, बस ये आपको 11th क्लास में ध्यान से देखनी है। और उनका नेक्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉज ऑफ इनर्शिया। व्हाई? इट इज वेरी अपेट क्वेश्चन और ये एग्जाम में बहुत बार आता है। According to the Newton's first law of motion, the state of rest or of uniform motion or direction can be changed only if we apply external force। ये तो होगी न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ? It means that the body can't change by itself its state of rest or of motion along a straight line. This is called as inertia। उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या कह रहा है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। सो बोथ डिफाइंस द सेम स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉज ऑफ इनर्शिया। Okay, I hope you got it. Next is impulsive force, the force which is variable and at a very short interval of time and short time, this is known as the impulsive force। देखिए, अगर हम कहें कि जैसे कि लोहार है ना, या फिर कुमार है, उसने अपनी जो हथौड़ा है वो बहुत ही कम इंस्टेंट के लिए बड़ी ही अच्छी फोर्स के साथ मेटल पे उसको स्ट्राइक किया। दिस इज नथिंग बट दिस इज द इम्पल्सिव फोर्स। अनदर एग्जांपल इज हिटिंग द बॉल विद बैट। अब हिट करने के टाइम पे बॉल जो है बैट के साथ बहुत ही कम टाइम के लिए कांटेक्ट होती है ना। तो ये कभी कभी आपको ने देखा होगा कि जो स्टेडियम्स हैं वहां पे रिकॉर्डिंग होती है ना, कि कैसे बॉल लगा, वेदर इट इज आउट और नॉट, वेदर द क्रिकेटर इज प्लेइंग वेल और नॉट। सो इसीलिए क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए होता है एंड इट इज कांट एंड वी कांट जज because it is acting for a very short interval of time, that is why it is included in the impulsive force। क्योंकि फोर्स ज्यादा लगती है पर बहुत ही कम समय के लिए। Okay, next is the impulse and it is equal to the product of average force and time for which the force act, that is impulse किसके बराबर हो जाएगी? force into time। यानी कि कितनी फोर्स लगी मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम के लिए, कितने छोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगी। यहाँ पे डेल्टा टी इसलिए लिया गया है बिकॉज टी इज वेरी 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 स्मॉल। ओके, नेक्स्ट इम्पल्स जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देख सकते हैं आप फोर्स से रिलेटेड है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इम्पल्स भी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।